Good morning, class 12th. So here is our second last topic I'm going to discuss today with you after Human Genome Project, that is Rice Genome Project, which is in our syllabus. So now you have complete idea that what was Human Genome Project was about. In Human Genome Project, the whole the sequence of the human genome, they were studied, or human genome was sequenced thoroughly. So, in the RISE Genome Sequencing Project, this is known as the International RISE Genome Sequencing Project. इसको बोलते हैं हम IRGSP, International RISE Genome Sequencing Project. इसके what is the basic specialities, characteristics of this project? Let's start one by one. That this rice, it has a name, scientific name. This is known as the Oryza sativa. With the variety which they studied, that was the Nippon bear, and the number of chromosome it has, that is the 12 pairs. That is, it means 2n is equal to 24 and n equal to 12 chromosomes. So this project, that is International Rice Genome Sequencing Project, this project was started in 1997, and this project, it was finished in 2002. What was the speciality of this project? It gave us the evidences for genome size of 389 MB, and sometime in few books you will find out that they have written here there 430 MB in the maximum. That both terms, the both values, they are correct. So genome size, that is 430 MB हम लेके चलेंगे. That was find out with the help of this project, that was studied. This genome size 430 MB was studied. These project give the evidence for this much size. Then this project, it told us that a total of 2859 genes are present in the rice. So it gave us the idea about the genes. Then from the genes, it gave us about the two information, that there are two types of content is present, or two types of, I will say, elements: transposable and non transposable elements are present in the genome, in the rice genome. Transposable elements क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में. Those DNA sequences which can change their position within a genome. मतलब अगर ये हमारा बहुत पूरा जीनोम है, एक सीक्वेंस हमारी यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा टाइम आप कई बार उसको स्टडी करेंगे तो हो सकता है वो हमें यहाँ पे मिले. सो दोज DNA सीक्वेंसेस विच कैन चेंज देयर पोजीशन इन द विद इन द जीनोम. जीनोम एक ही है, राइस का जीनोम है, उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन की जो पोजीशंस हैं, जब वो चेंज होती हैं, दो जंपिंग जीन्स, दीज आर कॉल्ड एज द जंपिंग जीन्स ऑल्सो. दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन विद इन द जीनोम, एंड दीज जंपिंग जीन्स और एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स. और ये कितने परसेंट दे व्हेन दे फाइंड आउट, 35% दे सेड कि राइस जीनोम जो बना है वो ट्रांसपोजेबल कंटेंट से बना है. एंड 37544 एलिमेंट्स जो हैं इसके, वो नॉन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं. रिलेटेड प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस दे वर डिटेक्टेड. और ये सारे के सारे जो हैं, दे कोड फॉर द प्रोटीन्स. दे हैव प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हमारे नॉन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं. फॉर होल दिस study of genes, they use two types of vectors. One is your BAC. What is BAC? That is the bacterial artificial chromosome. Those which have no idea about the vectors, just I will give you little idea about the vectors. Complete description हम recombinant DNA में पढ़ेंगे, but यहाँ के लिए इतना मैं बता देती हूँ कि जो vectors होते हैं वो आपकी जीन्स को कैरी करते हैं. अब जीन्स को कैरी करना मतलब, अब मैंने इस जीनोम की 2859 जीन्स को स्टडी करना है.
स्टडी करना मतलब कौन सी जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब उस जीन को मैं अपना किसी और होस्ट में एक्सप्रेस कराऊंगी, राइट। तो उसको कैरी करके होस्ट में डालने का काम कौन करता है, ये काम आपके वेक्टर्स करते हैं। सो वेक्टर जिस जीन को आप स्टडी कर रहे हो, वेक्टर्स उसको कैरी करता है, दे एक्ट एज अ कैरियर। वेक्टर को सिंपल याद रखने का तरीका एक बताती हूँ क्या होता है। आप मलेरियल पैरासाइट जो है उसको कैरी कौन करता है, मलेरिया के जो मलेरिया कॉज करता है उसको कैरी तो कौन करता है उस पैरासाइट को, आपका मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या हुआ, कैरियर। मॉस्किटो क्या हुआ, इट इज़ एन इंसेक्ट वेक्टर जो कि आपके मलेरियल पैरासाइट को कैरी कर रहा है। सो यहाँ पे ये वेक्टर्स क्या करते हैं, आपकी जिस जीन को आपने स्टडी करना है उसको कैरी करते हैं। पैक क्या है, पैक जैसे BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो पैक क्या है, पैक भी एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, बट वो हम निकालते हैं, ये बैक्टीरिया का नहीं होता है, ये बैक्टीरियोफेज का होता है। वायरस, जो दोज वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, सो उससे निकाला जाता है ये हमारा पैक, P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब इसको जो पूरा सीक्वेंस ये जो स्टडी किया गया था उसमें पार्टिसिपेंट कौन थे, किसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया। RGP जापान राइस जीनोम रिसर्च प्रोग्राम जो जापान में परफॉर्म किया, जो जापान में शुरू हुआ था, दैट दे गेव अस द आइडिया अबाउट द सीक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, 6th 7th 8th क्रोमोसोम ऑफ राइस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जापान में जो वर्क हुआ था, दे गेव अस इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट 6th 7th 8th क्रोमोसोम। कोरिया में जो रिसर्च हुई थी, दे ऑल्सो गेव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट क्रोमोसोम। देन 3rd and 10th chromosomes information was given to us by the United States, and in United States TIGR and PGIR centers, they worked on this rice genome program, and they gave us information about the 3rd and 10th chromosome. Then India also played its role. Indian Research Center program, they sequenced the 11th chromosome of rice from the University of Delhi. Two individuals, Akhilesh Tyagi and Narendra Singh, they participated in, they were the main contributors in this research program, and they sequenced 11th chromosome of rice. So these all were the participants of rice sequencing project. Now why sequencing of rice genome, क्यों राइस ही क्यों, है ना, राइस ही क्यों, वीट क्यों नहीं, सीरियल अदर कोई और सीरियल क्यों नहीं, ऐसे राइस का ही स्पेसिफिकली इसका इतना क्या इम्पोर्टेंस। फर्स्ट थिंग, राइस जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड, क्योंकि हाफ ऑफ आवर ग्लोबल पॉपुलेशन जो है राइस पे फीड करती है। इट इज़ द मेन रीज़न एक्चुअली, इससे भी ज़्यादा, कि इसका जो जिनोम है उसका साइज़ इज़ वेरी स्मॉलेस्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सीरियल क्रॉप्स, अदर सीरियल क्रॉप्स। सो जिसका जिनोम स्मॉलेस्ट है उसको स्टडी करना भी ईजी है, राइट, और जिसको स्टडी करना इजी है हमेशा उसी को चूज़ किया जाएगा। सो दिस राइस जिनोम इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ मेजर सीरियल क्रॉप, एंड एस्टिमेटेड साइज जो था इसका दैट वाज 430 MB। द थर्ड थिंग इज़ इट इज़ हैविंग वेरी शॉर्ट जनरेशन टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में आपके पास नेक्स्ट जनरेशन वॉज अवेलेबल। सो जो जीन्स का एक्सप्रेशन है इट वाज इजी टू स्टडी, कि अगर पेरेंट में ये एक्सप्रेशन है तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या एक्सप्रेशन होगा। सो इट वाज वेरी इजी टू स्टडी द with the short generation time. The main thing was the genetic material of rice is very very simple. इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो बाकी जीनोम है, सीरियल्स हैं, उनका जीनोम अगर ग्रॉस जीनोम होता है टोटल, जैसे राइस, वीट, मेज़, बार्ले, राइस, सोरगम, अब इन सब के जो जीनोम हैं वो एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं। इसका मतलब जो राइस का जीनोम है उसकी बहुत ज़्यादा, इट वाज सिमिलर टू वीट, मेज़, बार्ले, राई एज वेल एज सोरगम। सो इसका मतलब राइस को स्टडी करने से हमें सीरियल्स क्रॉप्स की जो फंक्शनल जीन्स हैं उसके बारे में पता लगा। सो वी वर एबल टू गेट आइडिया कि एक्चुअली सीरियल्स क्रॉप में
कौन सी जीन्स फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि राइस की जो सिमिलैरिटी थी वो वीट से बहुत सिमिलर था, इसका जीनोम मेज, barley, rye, these all were very close, very similar in their genome. So that is why rice act as the excellent model crop, as well as it is the easiest. It was the EASIEST. It is the easiest of cereal plant to transform जेनेटिकली. राइस एक ऐसी सीरियल क्रॉप है जिसको अगर इसकी हम जीन्स में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें तो इट वाज इजी टू हैंडल इट. मीन्स बहुत आराम से इसको स्टडी, यू कैन ट्रांसफॉर्म इट एंड यू कैन स्टडी इट. इसको ट्रांसफॉर्म करना, इसको चेंज करना बहुत ईजी था क्योंकि इसका जीनोम साइज बहुत स्मॉल था. सो दैट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट वाज द मेन रीजन्स कि राइस जीनोम, राइस ही क्यों चुना गया फ्रॉम ऑल द सीरियल क्रॉप्स. फीचर्स क्या थे? इसका नाम है साइंटिफिकली ओराइजा स्टाइवा. अप्रॉक्सीमेटली 30,000 to 56,000 फंक्शनल जीन्स इसमें होती हैं. एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 50% जो जीनोम है दैट हैज़ रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस. रिपीटेटिव इट्स लाइक GAA TTTC. अभी यही फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी GAA TTTC. मीन दीज काइंड ऑफ DNA सीक्वेंसेस दे वर 50% दे वर प्रेजेंट इन द होल जीनोम. ईच सेल हैज़ 12 क्रोमोजोम, राइट. 2n अगर बात करें तो 24 हो जाएंगे क्योंकि 12 पेयर्स हैं. और अगर आप हेप्लॉइड बात करो तो 12 क्रोमोजोम. स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम जो था इसमें से दैट वाज द 10th क्रोमोजोम. और इसकी जीन्स थी 3500 जीन्स. ये आता है कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट क्रोमोजोम ऑफ राइस, दैट इज़ द 10th क्रोमोजोम. एंड 3500 इसकी जीन्स थी विच हैज़ हैविंग मोर दैन 22 मिलियन बेस पेयर्स. द लास्ट पॉइंट अबाउट द राइस जीनोम, हमने जब स्टडी कर लिया इसको तो हमें कहाँ कहाँ इसकी एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ दिस राइस जीनोम project. This genome, it gave us the information which helped us at 3 points. First is the फंक्शनैलिटी ऑफ सीरियल क्रॉप्स, कि सीरियल क्रॉप्स में कौन सी जीन का क्या फंक्शन है. वी वर एबल टू स्टडी दैट विद द हेल्प ऑफ राइस जीनोम. राइस क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जीनोम जो सिंपल है, इट वाज इजी टू ट्रांसफॉर्म. मतलब इसके जो DNA को मॉडिफाई करना, इसकी जीन्स को मॉडिफाई करना बहुत इजी था. सो इट प्लेड अ वेरी हेल्पफुल रोल इन जेनेटिक स्टडीज़, क्योंकि जीन लेवल पे जो स्टडी होती हैं उसको आप बोलते हो जेनेटिक रिसर्च. सेकेंड, दिस इंफॉर्मेशन हेल्प टू प्रोड्यूस बेटर राइस क्रॉप्स. जैसे कि आपकी जो राइस है वो सिर्फ और सिर्फ गुड प्रोडक्शन देती है, बट इट इज़ नॉट एबल टू फाइट विद द डिजीज़, राइट. इट नॉट एबल टू फाइट विद द माइक्रोबियल अटैक. तो मैंने एक ऐसी राइस क्रॉप आइडेंटिफाई की, हाइब्रिडाइज की, जिसकी जो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा दे मुझे और जो डिजीज़ से भी फाइट कर सके. सो दैट इज़ कॉल्ड द ब्रीडिंग. सो राइस ब्रीडिंग वॉज वेरी हेल्पफुल after the rice genome project. So this is all about you need to know about the rice genome project. So next second last topic we are going to discuss in this chapter, that is about the DNA fingerprinting.